Everyone, welcome back to the channel. In today's video, we'll discuss on one of the most important topics of Indian polity, that is relations between union and states. We will understand legislative, administrative, financial and judicial relations in detail along with important constitutional articles. So stay tuned till the end. Starting with the video, first of all, we'll discuss that we are having federal structure with some of the unitary features. When it comes to federal structure, this means we are following dual kind of government. That means we are having union and then we are having state. Union means that at the central level and state at the state level. So when it comes to this system of dual government, what is the relation between these two? Now coming on to that, we are not purely federal because we are having our strong center. We have given our union a kind of stronger powers as compared to the state government. And when it comes to when the union or the center is stronger as compared to the other tier, that is state government, that means we are having some unitary features attached to it. So overall, we cannot say that India is purely federal. We say that it is quasi federal, and the reason of saying it as quasi federal is because mostly it carries federal features, but some of the unitary features like strong center, this makes it quasi. Quasi matlab as like it, iske jaisa, but not completely federal. I hope you got the understanding of that why this topic we need to study. That if we are saying that we have two forms of government, what is the relationship being formed amongst the two? Moving forward, that is legislative arena. So in all, when you discuss that, if I'm saying that relation between union and states, this relation can be divided into three categories. First is legislative, second is administrative, and third is financial. Here we are talking about legislative arena. Legislative arena means that both of these two, union and states, what is the boundary on which they are allowed to make laws. So first is, which you must understand, that is seventh schedule. Seventh schedule talks about that what is the distribution of legislative powers between union and states. And this particular schedule tells us that there are three legislative lists, and these lists are the one which are defining the boundaries of union and state authority. बाउंड्रीज मतलब जब यूनियन किन चीज़ों पे लॉ बना सकता है, स्टेट किन चीज़ों पे लॉ बना सकता है, तो उनका ओवरऑल बाउंड्री क्या है, उनकी टेरिटरी क्या है, उनका कितना पावर है उन चीज़ों पे लॉज बनाने का. Coming on to the list one, that is first list, which is called as union list. Union list में they are having 100 subjects. Originally 97 हुआ करते थे, अभी we are having 100 subjects. And in this list it is the power of parliament exclusively. यानी union list में जितने भी subjects हैं उस पे laws बनाने का काम, उस पे जो power है laws बनाने की, वो सिर्फ parliament के पास है. Example: defense, foreign affairs, currency, etc. Now when it comes to state list, that is list 2, पहले 66 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, करेंटली वी आर हैविंग 61 सब्जेक्ट्स. 61 सब्जेक्ट्स में these are the subjects on which purely state legislature has the power to make laws. तो ना ही लिस्ट 2 में यूनियन यहाँ पे इंटरफेयर कर सकता है और ना ही लिस्ट 1 में कोई भी स्टेट इंटरफेयर कर सकता है. तो दोनों के सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है. एग्जाम्पल हो गया जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, एग्रीकल्चर, एक्सेट्रा. थर्ड लिस्ट आती है कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट में देर आर अराउंड 52 सब्जेक्ट्स एंड ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट्स वर देयर. सो यहाँ पे बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन मेक लॉ. अब दोनों लॉज बना सकते हैं, बोथ कैन लेजिस्लेट. तो एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे एजुकेशन, मैरिज, क्रिमिनल लॉ, फॉरेस्ट, एट्सेट्रा. अब देखो, जहाँ पे हमने एक क्लियर बाउंड्री सेट कर दी कि इस पे किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो यहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे. बट व्हेन वी आर सेइंग कि यहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट दोनों ही लॉज बना सकते हैं, तो यहाँ चांसेस हैं दैट कॉन्फ्लिक्ट कैन बी देयर इन द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड मेड बाय स्टेट. If there is a conflict on any concurrent list subjects, union law always prevails.
and this is where we have kept our center stronger. So this is also called as doctrine of repugnancy. This is also stated as doctrine of repugnancy. It is mentioned under article 246. 246 में ही आता है that subject matter of laws made by parliament and state legislatures. वही आर्टिकल बताएगा that there are three lists, list 1, list 2 and list 3. अगर list 3 में कोई conflict होता है तो उस conflict को resolve करने के लिए हम doctrine of repugnancy लगाते हैं, और to the extent of जहाँ तक भी ये कॉन्फ्लिक्ट जा रहा है, यूनियन लॉ प्रिवेल करेगा ओवर द स्टेट लॉज. I hope the basic understanding of the legislative powers of union and state is clear to you. Moving ahead, that is parliaments reach beyond states border. Parliaments reach beyond states border is around, we are talking here about legislative powers. That means we are talking about legislative relations amongst union and state. It starts with Article 245 and ends with Article 255. Talking about Article 245, पहले तो ये यही बताता है that extent of laws made by Parliament and state legislature कि उनका territorial jurisdiction क्या होगा. तो अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही है तो एंटायर टेरिटरी और जो भी इंडिया की टेरिटरी है या उसका कोई भी पार्ट है उसके लिए पार्लियामेंट लॉज बना सकती है. व्हेन इट कम्स टू स्टेट, तो उस स्टेट जो भी लेजिस्लेचर लॉ बना रहा है तो वो उस पर्टिकुलर स्टेट या उसके पार्ट के लिए लॉज बनाएगा. यहाँ पे एक चीज़ और है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल. ये जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल वाला राइट है, दिस हैज़ बीन गिवन टू पार्लियामेंट कि पार्लियामेंट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज भी बना सकता है. जैसे कोई इंडियन है, वो अब्रॉड में रह रहा है, तो उसके ऊपर भी पार्लियामेंट में इनैक्ट लॉज अफेक्टिंग एनी इंडियंस विच आर लिविंग अब्रॉड, तो वहाँ पे हो जाएगा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल. 246 वी हैव डिस्कस, जहाँ पे देयर आर थ्री लिस्ट, और इन थ्री लिस्ट में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन लॉ प्रिवेल करेगा, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी. 247 की बात करें, 247 में आता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एस्टैब्लिश एडिशनल कोर्ट्स. अगर पार्लियामेंट को लगता है कि फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन इन यूनियन लॉज दे इट नीड्स सर्टन मोर कोर्ट्स, एडिशनल कोर्ट्स, तो वो इन एडिशनल कोर्ट्स को एस्टैब्लिश कर सकता है. द रीजन, द पर्पस इज होल सोल टू इम्प्रूव द डिलीवरी ऑफ जस्टिस रिगार्डिंग सेंट्रल लॉज. नेक्स्ट आता है आर्टिकल 248. 248 talks about residuary powers. Residuary powers of legislation किसके पास हमने दिया है? Parliament. Parliament holds the residuary powers for subjects which are not enumerated in any kind of list. जो भी subjects किसी भी list में mentioned नहीं है, जैसे if I give you the example कि अभी हम जब इन तीनों lists को देखते हैं तो कहीं पे cyber laws mentioned नहीं है, कहीं पे भी digital currency mentioned नहीं है, कहीं पे भी space technology mentioned नहीं है. सो इन केसेस में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हमें निकल के आते हैं जहाँ पे जो पॉइंट्स तीनों लिस्ट में कहीं भी मेंशन नहीं है, तो अब वो कैसा किस ओरिएंटेशन में जाएगा, यूनियन के पास या स्टेट के पास, तो ये कन्फ्यूजन होता है. इसीलिए आर्टिकल 248 बनाया गया है कि कोई भी सब्जेक्ट अगर वो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है तो दैट मीन्स हम उसको रेजिडुअरी सब्जेक्ट मानेंगे, और पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होगा उन सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाने का. सो यहाँ पे अगेन हमारा जो इंडियन फेडरेशन है उसको हमने सेंटर ओरिएंटेड कर रखा है, क्योंकि हमने पावर अपनी पार्लियामेंट को दे रखी है. एक्सक्लूसिव पावर इज गिवन टू पार्लियामेंट. यहाँ पे हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात ही नहीं कर रहे, तो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स आर असाइन टू पार्लियामेंट ओनली. नेक्स्ट आता है 249. 249 टॉक्स अबाउट पार्लियामेंट्स पावर टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स इन नेशनल इंटरेस्ट. कई बार ऐसा होता है, दिस इज द एक्सेप्शन. ये जो आर्टिकल 249 है, दिस इज द एक्सेप्शन टू स्टेट लिस्ट, जहाँ पे हमने बोला था कि स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, सिर्फ स्टेट लॉज का काम, स्टेट लेजिस्लेचर का काम है स्टेट लॉज को बनाना अंडर लिस्ट 2. बट 249 इज अ एक्सेप्शन. 249 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट के सब्जेक्ट्स पे भी लॉ बना सकता है, बट ओनली थिंग इज कि वो चीज़ नेशनल इंटरेस्ट में होनी चाहिए. नेशनल इंटरेस्ट में कब होगी? यहाँ पे राज्यसभा ऑथोराइज करेगा पार्लियामेंट को टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट मैटर्स. राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करता है जो कि 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए. 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इस चीज़ को पास करेंगे. ये 1 साल के लिए वैलिड होता है, और इसमें
जो पार्लियामेंट है वो लिस्ट 2 के सब्जेक्ट्स को, यानी पार्लियामेंट इज लेजिस्लेटिंग ऑन लिस्ट 2, सो ये 249 का एक्सेप्शन होगा और सिर्फ तभी ऐसा होगा जब देयर इज एनीथिंग विच इज रिगार्डिंग नेशनल इंटरेस्ट। इसके अलावा कभी भी पार्लियामेंट कभी भी किसी भी केस में लिस्ट 2 पे सब्जेक्ट्स पे लॉज नहीं बनाएगी। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन पुलिस रिफॉर्म्स इन नेशनल इंटरेस्ट, अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो पुलिस लॉज पे लेजिस्लेशन पास कर सकता है पार्लियामेंट, एंड दिस विल बी द एक्सेप्शन। वैसे देखा जाए तो ये स्टेट का काम है, बट अगर स्टेट नहीं कर रहा है तो दिस इज आवर टास्क कि हम इस चीज को आगे कंटिन्यू करवाएं। नेक्स्ट आता है, from here you have understand that territorial authority we have talked about 245, national interest override in 249, residuary powers in 248, and supreme legislative role that is in article 248 only, जहाँ पे हम पार्लियामेंट को ही कुछ ऐसे नेशनल चैलेंजेस में एक तरह का पावर देते हैं दैट दिस पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन सर्टेन इश्यूज। नेक्स्ट आता है व्हेन द यूनियन स्टेप्स इन स्पेशल प्रोविजंस, ये स्टार्ट होगा 250 से। 250 में कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को अलाउ करता है कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में भी लॉज बना सकता है अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस कौन कौन से होंगे, लेट्स सी। 250 बात करता है दैट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स। तो अगेन नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट के पास फिर से ये पावर आ जाती है कि वो लिस्ट 2 के सब्जेक्ट यानी स्टेट लिस्ट पे भी लॉज बना सकता है। अब इन लॉज का जो ड्यूरेशन होता है कि ये कब तक इफेक्टिव रहेंगे, तो ये ड्यूरिंग इफेक्टिव रहते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब तक इमरजेंसी चलेगी तब तक रहेंगे, प्लस जैसे ही खत्म होगी इमरजेंसी उसके 6 मंथ्स आगे तक भी कंटिन्यू रहते हैं। तो 6 मंथ व्हेन इट एंड्स, एंड ओवरऑल जो भी इमरजेंसी का टाइम पीरियड है उसमें ये लॉ इफेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट इसी में 251 टॉक्स अबाउट इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज अंडर आर्टिकल 249 एंड 250। 249 और 250 में अगर इनकंसिस्टेंसी होती है, 249 टॉक्स अबाउट, अभी हमने पहले वाले जो स्लाइड है उसमें पढ़ा है दैट पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकता है ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स जो भी नेशनल इंटरेस्ट में है। एंड 250 टॉक्स अबाउट कि नेशनल इमरजेंसी होगी तो भी पार्लियामेंट लॉज बना लेगा स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे। 251 बात करता है अगर इनकंसिस्टेंसी हो गई फिर कौन सा प्रिवेल करेगा, यूनियन लॉ हमेशा प्रिवेल करेगा ओवर स्टेट लॉ अगर किसी भी तरह की इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट इसी में है आर्टिकल 252। आर्टिकल 252 टॉक्स अबाउट दैट इफ 2 or more state legislature pass resolution requesting it, parliament may legislate on their behalf. This means power of parliament to legislate for 2 or more states by consent। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट रेजोल्यूशन पास करेंगे और वो पार्लियामेंट को बोलेंगे दैट रिक्वेस्ट करेंगे पार्लियामेंट को दैट यू मेक लॉज ऑन आवर बिहाफ, आप हमारे बिहाफ पे स्टेट सब्जेक्ट्स पे लॉज बना दो। जैसे इसका इफ आई गिव यू द एग्जांपल, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज जो हैं वो स्टेट ने रिक्वेस्ट किया था, देन पार्लियामेंट लेजिस्लेटेड दैट पर्टिकुलर लॉज, और यहाँ पे लेटर मान लो दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स ने रिक्वेस्ट किया बट इन केस बाकी स्टेट्स को भी ज़रूरत है तो ये वाले जो लॉज हैं अदर स्टेट्स कैन अडॉप्ट दीज लॉज लेटर ऑन। सेम जो पार्लियामेंट ने पास किया है 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए जिन्होंने एट फर्स्ट इंस्टेंस रिक्वेस्ट किया था, तो बाकी स्टेट्स भी इन्हीं लॉज को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में 253 टॉक्स अबाउट इंटर स्टेट अग्रीमेंट्स, या हम कह सकते हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है या इंटर स्टेट अग्रीमेंट्स है, उनको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा। देखो पार्लियामेंट का काम है टू मेक लॉज फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज इवन ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स। तो जैसे किसी स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट मेंशन्ड है, आई एम जस्ट गिविंग यू हाइपोथेटिकल एग्जांपल। अब स्टेट लिस्ट का है तो स्टेट लॉज बनाएगा, बट समहाउ जो पार्लियामेंट है इट इज़ द फेस जो ऐसे लॉज बना रहा है जो यूनियन यानी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर कहीं पे कोई इंटरनेशनल ट्रीटी होती है या इंटरनेशनल अग्रीमेंट होता है और उसका जो सब्जेक्ट है दैट इज रिलेटेड टू योर लिस्ट 2, तो वहाँ पे हम स्टेट को पावर नहीं देंगे उस इंटरनेशनल अग्रीमेंट या ट्रीटी पे लॉज बनाने की। अगेन वो पावर किसके पास चली जाएगी, विद द पार्लियामेंट।
नाउ कम्स एक इसी में आर्टिकल है 246A। 246A टॉक्स अबाउट कि goods and services tax is a unique example where both union and states have legislative powers, with parliament having exclusive power for interstate trade. This is the example of कि जैसे जीएसटी फ्रेमवर्क है। जीएसटी फ्रेमवर्क किस तरह का था, जहाँ पे हमें यूनियन और स्टेट दोनों की ही ज़रूरत थी, तो वहाँ पे दोनों के पास लेजिस्लेटिव पावर है। बट व्हेन इट कम्स टू इंटरस्टेट ट्रेड, तो वहाँ पे पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होगी, स्टेट उस चीज़ पे लॉज नहीं बनाएगा। So this is the example to tell you, this is the like slide to tell you कि वैसे तो हम बोलते हैं कि लिस्ट वन, लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री, ये तीनों डिफरेंट लिस्ट है, सब में अपना अपना सबका काम है। बट कई बार क्या है, पार्लियामेंट का इंटरफेरेंस भी हो रहा है लिस्ट टू में, तो वो कब कब होगा, दीज आर द स्पेशल प्रोविजंस वी हैव डिस्कस्ड हियर। Moving forward to administrative symphony. Administrative symphony means administrative relations, and these relations are given under Article 256 to 263. 256 to 263 जाने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जीक्यूटिव पावर स्कोप होता क्या है। एग्जीक्यूटिव पावर स्कोप मीन्स दैट एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की विच एक्सटेंड्स टू द मैटर ऑन विच पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट एंड सिमिलरली फॉर द स्टेट्स। तो कई बार एग्जीक्यूटिव, देखो कई बार एग्जीक्यूटिव लॉ बना रहा है, जैसे हमारे जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर थी प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास, वो टेम्परेरी लॉ पास कर रहे हैं जब हमारा पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर अभी फिलहाल सेशन में नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव की पावर क्या है, एक्सटेंड हो रही है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन या इम्प्लीमेंटेशन से आगे बढ़ के लॉ मेकिंग पावर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी में आता है यूनियन डायरेक्शंस टू स्टेट्स। यूनियन डायरेक्शन टू स्टेट मतलब यूनियन कई बार स्टेट्स को डायरेक्शन दे सकती है कि वो जो लॉज पास कर रहे हैं दे शुड बी इन कंप्लायंस विद द यूनियन लॉज, जिससे कि यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसमें किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। तो स्टेट्स मस्ट इंश्योर कंप्लायंस विद द पार्लियामेंट्री लॉज, और इस चीज के लिए यूनियन कैन इशू द डायरेक्शन टू द स्टेट्स। दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 256। When I come to 257, 257 talks about कि कंट्रोल है यूनियन का ओवर द स्टेट्स। तो स्टेट शुड एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट अफेक्टिंग यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर। स्टेट गवर्नमेंट जब अपनी पावर को यूज कर रही होगी तो वो इस चीज को ध्यान में रखेगी कि वो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर में किसी भी तरह का हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर रही है, और यूनियन किसी भी टाइम पे डायरेक्शन इशू कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, रेलवेज की प्रोटेक्शन कैसी होगी। सो 256 और 257 बताता है कि यूनियन स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है इन एनी सर्कमस्टांसेस। अगर हम कलेक्टिव बात करें तो 256 टू 263 कलेक्टिवली टॉक्स अबाउट कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं दैट गवर्न हाउ यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव शुड इंटरैक्ट। तो इससे होगा क्या, वो आपस में कॉपरेट कर पाएंगे और किसी भी तरह का अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो भी जाता है तो उसको आराम से रिजॉल्व किया जा सकता है। और ये जो मैकेनिज्म है ये सिर्फ इसीलिए बनाया गया है दैट स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी तरह से यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन को ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, और ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा तो एक कोहेसिव नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क कंटिन्यू चलता रहेगा। मूविंग फॉरवर्ड टू coordination and all India services. So see, before coming on to this, we have article 258 also, जहाँ पे जो पावर है यूनियन की टू कन्फर फंक्शंस ऑन स्टेट, मीनिंग प्रेसिडेंट मे एंट्रस्ट यूनियन फंक्शंस टू स्टेट गवर्नमेंट। वो स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ यूनियन फंक्शंस ट्रांसफर कर सकता है। जैसे कि अगर मान लो कोई सेंट्रल वेलफेयर स्कीम निकली, तो सेंट्रल वेलफेयर स्कीम निकाली तो यूनियन ने है, बट यूनियन से अगर वो पास ऑन होनी है, स्टेट पे अप्लाई होनी है, तो वो जो यूनियन है वो डायरेक्शन दे सकता है स्टेट गवर्नमेंट को कि नाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट दी सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स इन योर स्टेट। इसी तरह से है 258A। 258 टॉक्स अबाउट पावर ऑफ स्टेट्स टू एंट्रस्ट फंक्शन टू यूनियन। मतलब ये होता है कि गवर्नर स्टेट फंक्शंस यूनियन को ट्रांसफर कर सकता है बट विद कंसेंट। यूनियन अगर तैयार है इस स्टेट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए तो ही गवर्नर उस स्टेट फंक्शन को फर्दर फॉरवर्ड करेगा टू द यूनियन टू गेट परफॉर्म। Now coming on to 261. 261 talks about कि
पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का क्या होगा? पब्लिक एक्ट एंड जुडिशियल डिसीजंस आर रिकॉग्नाइज्ड थ्रू आउट इंडिया, सो इट इंश्योर्स दैट कि एक नेशनल लीगल यूनिटी बनी रहे। जितने भी हमारे पब्लिक एक्ट्स हो गए, पब्लिक रिकॉर्ड्स हो गए, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो गई, वो हर जगह पे सेम मानी जाएगी, हर जगह पे उसका जो इंटीग्रेशन है वो सेम होगा, इंटरप्रिटेशन सेम होगा। Coming on to 262. 262 talks about एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। अगर कहीं पर भी किसी भी तरह का वाटर डिस्प्यूट होता है, दिस मीन्स स्टेट्स के बीच में वाटर डिस्प्यूट्स है, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स है, उसको रिजॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट पिक्चर में आएगी। पार्लियामेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगी टू क्लियर कि ये जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट चल रहा है इसमें हमारा से क्या है। सो वाटर डिस्प्यूट में गो एंड जस्ट रीड अबाउट कि कई सारे वाटर डिस्प्यूट्स हुए हैं, जिसमें से कावेरी वाटर डिस्प्यूट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अब हम आते हैं 263 पे। 263 आर्टिकल क्या कहता है? दैट इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल का मतलब है दैट समवेयर फॉर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन प्रेसिडेंट में एस्टैब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल का काम क्या है? दैट इट इज रिगार्डिंग फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिस्प्यूट्स जो भी चल रहे हैं, एंड देयर इज अ डिस्कशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट। सो इसका काम होगा इन्वेस्टिगेट करना एंड देन टू सबमिट द रिपोर्ट ऑन विच द थिंग्स आर टू बी डिसाइडेड। तो प्रेसिडेंट स्टैब्लिश करता है इंटर स्टेट काउंसिल, जिससे कि कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आया स्टेट्स और यूनियन के बीच में, टू इन्वेस्टिगेट दोज डिस्प्यूट्स। और वो बात क्या करेगा? जो यूनियन है और स्टेट है उनके कॉमन इंटरेस्ट की बात करेगा। एंड इससे होगा क्या? फेडरलिज्म को और ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा, कॉपरेशन होगा फेडरलिज्म का, बिकॉज दो तरह की गवर्नमेंट्स है, राइट? इनको आपस में ही मैनेज करना इज अ बिट ऑफ टास्क, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके इनका जो इश्यूज है उसको पीसफुली रिजॉल्व कर दिया जाए। नेक्स्ट आता है इसी में, इट्स नॉट डायरेक्टली इनटू आर दिस administrative relation, but you can take it as an example कि when it comes to the cooperation, तो there are mechanism to bridge the union and state administration, जिसमें all India services को create किया जाता है, जैसे IAS PCS अंडर आर्टिकल 312। बट ये जो कैडर होता है इसका एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन है विच इज सर्विंग बोथ यूनियन एंड स्टेट। सो इससे एक तरह का नेशनल इंटीग्रेशन एज इट इज कंटिन्यू रहता है। डेलीगेशन आई हैव टोल्ड यू कि यूनियन स्टेट को ट्रांसफर कर सकता है, स्टेट यूनियन को कर सकता है, बट विद कंसेंट। जब यूनियन स्टेट को कर रहा है तो वो डायरेक्शन देगा। ऑल इंडिया सर्विसेज वी हैव discussed here. So in this way it is the like 263 एक तरह से इंटरस्टेट काउंसिल स्टैब्लिश करेगा, जिससे कॉमन इंटरेस्ट पे बात करके हम एक तरह का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कंटिन्यू रखें, ना कि कॉन्फ्लिक्ट वाला फेडरलिज्म। सो इन दिस वे द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन वर्क टुगेदर एंड दे कैन effectively share the matters with which are having the concern for your nation. नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल इंटरप्ले। फाइनेंशियल इंटरप्ले मीन्स फाइनेंशियल रिलेशंस। फाइनेंशियल रिलेशंस जो कि यूनियन और स्टेट के बीच में होते हैं, दे आर डिस्कस्ड अंडर आर्टिकल 268 टू 293। अब इसमें होगा क्या क्या की फाइनेंशियल प्रोविजंस कैसे होंगे? जैसे पहला तो हो गया 268। 268 टॉक्स अबाउट कि अगर ड्यूटीज लिवाइड बाय यूनियन है बट कलेक्टेड बाय स्टेट्स है, मतलब कुछ ऐसी स्टैम्प ड्यूटीज है जो लगाता तो यूनियन है बट स्टेट उसको कलेक्ट करता है, तो दिस इज टॉकिंग अबाउट द टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। 269 talks about tax levied and collected by union but assigned to the states। टैक्स लगाए भी यूनियन ने है, कलेक्ट भी यूनियन ने किए हैं, बट स्टेट्स को असाइन कर दिया गया है। तो टैक्सेस जैसे कि इंटर स्टेट ट्रेड्स को लेके होते हैं वो यूनियन कलेक्ट करता है, बट वो फर्दर स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। 269A जो अभी हमने डिस्कस किया था टॉक्स अबाउट जीएसटी ऑन इंटरस्टेट ट्रेड। जीएसटी ऑन इंटरस्टेट ट्रेड लगाया यूनियन ने, यूनियन के थ्रू गया है बट इट इज शेयर्ड विद द स्टेट्स। तो ये सारे टैक्स रेजीम है विच वी आर टॉकिंग अबाउट, और इसी 269A ने ही एक तरह से जीएसटी रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। दिस आफ्टर जीएसटी रिफॉर्म दिस पर्टिकुलर आर्टिकल वाज इंट्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट आता है 270। 270 टॉक्स अबाउट टैक्सेस लेवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। बहुत सारे जो यूनियन के टैक्सेस हैं वो लेवाए तो यूनियन ने किए हैं, बट फर्दर जब उनको कलेक्शन उनका हो गया है तो इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो ये कब होगा? दिस विल बी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन बताएगा कि हमें कितना शेयर किसको देना है।
और जब शेयर दे दिया जाएगा, सो इट इज बेसिकली ऑन द रिकमेंडेशन गिवन बाय द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला जो फाइनेंस कमीशन लगाता है। 271 271 टॉक्स अबाउट द सरचार्ज फॉर यूनियन पर्पसेस। सरचार्ज मीन्स कि पार्लियामेंट कुछ ऐसे सरचार्जेस को इम्पोज कर सकती है फॉर यूनियन पर्पस, पर वहाँ पे स्टेट्स डू नॉट शेयर दिस सरचार्ज रिवेन्यू। ये सिर्फ यूनियन के ऊपर होगा, स्टेट के ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट अब इसमें पॉइंट आता है ग्रांट्स इन एड। ग्रांट्स इन एड मीन्स ये शुरू होता है 275 से। 275 बात करेगा कि यूनियन स्टेट्स को ग्रांट इन एड प्रोवाइड करेगा फॉर सपोर्टिंग स्टेट फाइनेंसेस। दिस मीन्स यूनियन प्रोवाइड्स ग्रांट टू द नीडी स्टेट्स, जिनको ज़रूरत है, जिन स्टेट्स को चाहिए, उन स्टेट्स को कुछ अमाउंट, यानी अमाउंट को हम बोल रहे हैं ग्रांट इन एड प्रोवाइड करेगा। एंड दिस विल रिड्यूस द रीजनल इम्बैलेंस। मान लो कोई स्टेट है, उसके पास बहुत अच्छे से पैसा है, तो वो अच्छे से चल रहा है, बट किसी स्टेट को नीड है, उसकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, तो यूनियन हेल्प करता है जिससे कि वो एक तरह का प्लेटफॉर्म क्रिएट करे जहां सभी स्टेट्स अपनी अपनी इकोनॉमी को मैनेज कर पाए। तो कई बार ग्रांट्स इन एड की जरूरत पड़ती है, तो वो हेल्प यूनियन प्रोवाइड करता है। 276 टॉक्स अबाउट टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस। तो कुछ यहाँ पे हमने स्टेट्स को पावर दिया है कि स्टेट्स में लेवाई टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट। तो वो जो प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट पे जो टैक्सेस अप्लाई होता है, वो हम स्टेट्स को पावर देते हैं कि तुम इस टैक्स को कंटिन्यू करवा लो। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 280 विच टॉक्स अबाउट द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन मतलब कि इट इज playing a very vital role in recommending the distribution of net proceeds of taxes between union and states। जैसे अभी मैंने ऊपर वाले आर्टिकल में बताया कि फाइनेंस कमीशन अपना डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला लगा के डिवाइड करेगा कि कितना पैसा हमें कहाँ पे देना है, जो भी टैक्सेस से कलेक्शन हुआ है वो कितना यूनियन के पास जाएगा और कितना स्टेट्स के पास जाएगा। तो इस फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है एंड इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ये रिकमेंड करता है कि टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये यही सजेस्ट करेगा कि ग्रांट इन एड कितना होना चाहिए, और दिस इज द बॉडी विच इज इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल बैलेंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। Now see year interval, it is mentioned here also कि 5 year interval है। 268 to 293 we are governing financial relations and 280 establishes the finance commission। 282 talks about expenditure for public purposes, जहाँ पे यूनियन और स्टेट दोनों ग्रांट्स के लिए जा सकते हैं फॉर अगर कोई भी ऐसा खर्च करना है जो पब्लिक पर्पसेस से रिलेटेड है। 293 टॉक्स अबाउट कि स्टेट में बोरोइंग बाय स्टेट्स होता है, स्टेट्स में बोरो विद इन इंडिया। वो जो स्टेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से बोरोइंग कर सकते हैं, बट रेस्ट्रिक्शन क्या है, स्टेट्स को यूनियन की कंसेंट चाहिए होती है अगर उनके पास, उनका पहले से ही यूनियन के पास कुछ डेप्ट बाकी है तो इन दैट केस यूनियन इज रिक्वायर्ड टू गिव द परमिशन, तभी वो जाके आगे फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट आते हैं रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, जिसको हम कहते हैं मेंटेनिंग हार्मनी, कि हार्मनी कैसे मेंटेन कर रखी है, किस हिसाब से उन्होंने अपने जो सिस्टम्स हैं उन पे जुडिशियल ओवरसाइट कैसे लगाया है, या फिर अभी मैंने बात करी थी आर्टिकल 262 में जहाँ पे इंटर वाटर डिस्प्यूट्स है वहाँ पे एडजुडिकेशन कैसे कर रहे हैं, या इंटर स्टेट काउंसिल्स को स्टैब्लिश करके किस तरह से दे आर मेंटेनिंग, यूनियन एंड स्टेट्स आर मेंटेनिंग टू रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट्स, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या है। हार्मनी क्यों मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि तो एक सिंगल सिस्टम है ना, एक सिंगल सिस्टम में यूनियन भी है और डिफरेंट स्टेट्स का लेजिस्लेचर और उनकी गवर्नमेंट भी है। अब इसी सिस्टम को अगर प्रॉपरली चलाना है तो जितने भी आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपको उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैंसिल करना होगा, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स का रेजोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेजोल्यूशन के लिए दे हैव दीज 3 ways in our articles only, जहाँ पे अगर कोई वाटर डिस्प्यूट है पार्लियामेंट एडजुडिकेट करेगा, लॉज बनाएगा कि उनका एडजुडिकेशन कैसे होना है, और ट्राई करेगा कि ये जो रिवर वाटर है इसके डिस्प्यूट्स को हम क्लैरिफाई करवा सके, राइट। और जब भी देखो इसमें हम याद करो आर्टिकल 131 जहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन था सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ पे 131 सुप्रीम कोर्ट में जो डिस्प्यूट्स हैं बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स एंड बिटवीन स्टेट्स, तो वो केसेस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। तो जब भी ऐसा कोई इशू होगा लॉज यहाँ से बनेंगे, बट जो केस है वो 131 में सुप्रीम कोर्ट जाएगा फॉर द एडजुडिकेशन।
इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाती है एंड दिस काउंसिल उसका प्योरली यही काम है कि एक फोरम है फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और कॉमन इंटरेस्ट पे बात करेगा बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। नेक्स्ट आता है जुडिशियल ओवरसाइट। जुडिशियल ओवरसाइट में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जिसका रोल है इन एडजुडिकेटिंग यूनियन स्टेट डिस्प्यूट्स। अगर किसी भी इस तरह के डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को मेंटेन करता है सुप्रीम कोर्ट। और क्योंकि इंडिया का एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, जैसे एक प्रॉपर हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट, तो हमने सबसे एपेक्स कोर्ट को ही ये पावर दे रखी है कि यू एंश्योर द यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। और अगर कोई इश्यूज आते हैं बिटवीन यूनियन एंड स्टेट तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग द सेम, फॉर टेकिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम, और आप ही इस चीज को डिसाइड करो, इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करो। नेक्स्ट आता है अकॉसी फेडरल स्ट्रक्चर, जिसको हम कह रहे हैं कि यूनिटरी स्पिरिट है बट फॉर्म फेडरल है। यूनिटरी स्पिरिट का मतलब क्या हुआ कि यू आर हैविंग सर्टेन यूनिटरी फीचर्स बट सिस्टम आपका फेडरल है। फेडरल फीचर्स में आ जाएगा जैसे डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट थ्रू 7 शेड्यूल एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स। यानी हमारे पास जो 3 लिस्ट मेंशन्ड है वो बता रही है कि 2 तरह की गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट और सबऑर्डिनेट में स्टेट गवर्नमेंट। 3 लिस्ट है, अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, किस पे यूनियन लॉ बनाएगा, किस पे स्टेट लॉ बनाएगा। इसी में नेक्स्ट फेडरल फीचर है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो कि डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगी और कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंटरप्रेट करेगी। एंड थर्ड है बाई कैमरल लेजिस्लेचर विद राज्यसभा रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स एट नेशनल लेवल। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, अब स्टेट्स में नहीं जाते हैं, स्टेट्स में कहीं पे यूनिलेटरल है, कहीं पे बायलेटरल है, सॉरी यूनि कैमरल है या बाई कैमरल है, बट टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट तो वो बाई कैमरल ही चल रहा है। बट इसी में कुछ यूनिटरी फीचर्स ऐड ऑन हो जाते हैं। यूनिटरी फीचर्स कैसे ऐड ऑन हो रहे हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमने रेजिडरी पावर्स सेंटर को दे रखी है। इमरजेंसी प्रोविजंस में कंप्लीट पावर यूनियन की है। कई बार लिस्ट 2 पे भी अगर टॉपिक नेशनल इंटरेस्ट को रिलेटेड है तो लिस्ट 2 पे भी पार्लियामेंट लॉज बना रहा है, यानी कंप्लीटली स्ट्रॉन्गर को जो हमने सेंटर है उसको हमने स्ट्रॉन्गर हेड पे रख रखा है। गवर्नर को अपॉइंट कर रहा है सेंटर। ऑल इंडिया सर्विसेज अंडर यूनियन कंट्रोल है। यूनियन की पावर है टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट, या स्टेट्स में अगर कुछ उनका एरिया इंक्रीज या डिमिनिश करना है, द कंप्लीट पावर इज विद यूनियन ओनली, पार्लियामेंट डिसाइड करती है। सिंगल सिटीजनशिप चल रही है, स्टेट के पास अपनी कोई ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, और एक इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी है एंश्योरिंग द नेशनल यूनिटी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो यूनिटरी फीचर्स बताते हैं, इसीलिए हमारी कंट्री को कॉसी फेडरल बोला गया है। कॉसी फेडरल बिकॉज इट इज possessing both फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स इन अ यूनिक ब्लेंड। यूनिटरी स्पिरिट है क्योंकि पावर्स भले ही हमने डिवाइड कर रखी हो पर हमने यूनियन को एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन दी है जो कि फेडरल फ्रेमवर्क में एक एडिशनल है। तो फ्रेमवर्क फेडरल है बट स्पिरिट हमारी यूनिटरी है। काम क्या है, टू मेंटेन द नेशनल यूनिटी। दोनों जो स्टेट है और नेशन है, यानी कह लो स्टेट है या यूनियन है, दोनों का काम है टू एंश्योर द बैलेंस, और इस बैलेंस में इट विल बी प्रोटेक्टिंग द रीजनल डाइवर्सिटी, अकोमोडेटिंग इंडियाज वास्ट प्लूरलिटी। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क। क्योंकि क्वासी फेडरल है तो इट अलाउज द कॉन्स्टिट्यूशन टू अडेप्ट टू चेंजिंग नेशनल नीड्स व्हाइल प्रिजर्विंग स्टेट ऑटोनॉमी। तो कई बार स्टेट की ऑटोनॉमी को प्रोटेक्शन देने के लिए कई बार जो सर्कमस्टांसेस हैं उसमें कुछ चेंजेस को भी अडेप्ट करना होता है। तो इट इज़ फ्लेक्सिबल क्योंकि क्वासी फेडरल सिस्टम है, तो ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट नहीं होती है। Coming on to the last slide, that is the evolving relationship, a dynamic balance। ये रिलेशनशिप इवॉल्व कैसे हो रहा है, ये यूनियन और स्टेट का जो रिलेशनशिप है क्या ये फिक्स्ड है। सो कमिंग ऑन टू दिस कि ये एक तरह से फिक्स्ड सिस्टम नहीं होता है। फिक्स्ड क्यों नहीं है, क्योंकि ये चीज़ डायनेमिक है, इट इज़ नॉट स्टैटिक, इट इज़ इवॉल्विंग थ्रू द टाइम, इट इज़ इवॉल्विंग थ्रू द जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज कर रही है, जैसे इंडिया की गवर्नेंस नीड्स चेंज हो रही हैं, वैसे ही यूनियन और स्टेट के बीच का रिलेशन भी चेंज होता चल रहा है। यू सी 7 शेड्यूल में ओरिजिनली बार बार हम क्यों लिख रहे थे कि ओरिजिनली इतने सब्जेक्ट्स थे अब इतने सब्जेक्ट्स हैं, दैट मीन्स कि फ्रॉम टाइम टू टाइम एवोल्यूशन हुआ है, सब्जेक्ट्स का एडिशन हुआ है, ये सब्जेक्ट्स को डिसकंटिन्यू कराया गया है। तो 7 शेड्यूल इज अ बेड रॉक जो आपको ये बताता है कि इस फेडरल स्ट्रक्चर में आपके जो यूनियन और स्टेट की जो पावर है वो डिवाइड कैसे है। तो फ्रॉम दिस यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट वी आर जस्ट डिवाइडिंग द पावर्स अमंग्स द टू।
कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन की बात करें, 7 शेड्यूल एंड आर्टिकल्स 245 टू कंप्लीट 293 टॉक्स अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। अब इसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन भी है, लेजिस्लेटिव भी है, प्लस आपके फाइनेंशियल रिलेशंस भी आ गए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जैसे कि 42nd और 44th अमेंडमेंट, इट रिकैलिब्रेटेड द बैलेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन डिटरमाइनिंग द यूनियन एंड स्टेट रिलेशंस टू फॉर्म द बैकबोन ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कॉपरेशन की जब हम बात करें तो ऑल इंडिया सर्विसेज एंड इंटर स्टेट काउंसिल्स को हमने अपने आर्टिकल्स में ही डाला है कि इनको हम फॉर्म कर सकते हैं फॉर द कोलैबोरेटिव गवर्नेंस। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस यानी सुप्रीम कोर्ट को पावर है दैट इन केस अगर कोई भी इशू क्रिएट होता है या कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एडजुडिकेट करेगा टू रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। एंड व्हेन इट कम्स टू जीएसटी रेवोल्यूशन, ये 246A इंट्रोड्यूस्ड अ लैंडमार्क शेयर्ड टैक्सेशन मॉडल, जो 269 में आके इट इंट्रोड्यूस द सेम। तो एक तरह का फिस्कल फेडरलिज्म को रीडिफाइन किया है वेयर both union and state have the power to legislate। And what is the dynamic future into this, that to understand that what is the interplay between the India's governance when it comes to both union and state। अब फेडरल स्ट्रक्चर है तो ऑफ कोर्स यूनियन का भी कहीं ना कहीं, यूनियन का तो मेजर कह लो पार्ट है, बट स्टेट्स का भी पार्ट अपने अपना आता है। एंड टू मेंटेन दैट हेल्दी कोऑर्डिनेशन, दैट म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दैट कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस, तो यहाँ पे डायनेमिक फ्यूचर हमें दिखता है कि स्टैटिक नहीं है, इट विल कीप ऑन चेंजिंग जैसे जैसे हमारी नीड्स चेंज होती रहेंगी। सो टू अंडरस्टैंड दिस इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की ओवरसाइट ऑलवेज मेंटेन रखें इन बैलेंसिंग द यूनिटी विद डाइवर्सिटी। सो इन कंक्लूजन आई वुड से कि यूनियन एंड स्टेट रिलेशंस आर द बैकबोन ऑफ इंडियन फेडरलिज्म एंड द कॉन्स्टिट्यूशन केयरफुली balances the power of union and states through legislative, administrative, financial and judicial mechanisms. So though center is a comparatively stronger one, the constitution also promotes the cooperative federalism for effective governance and national unity. And the success of Indian democracy depends upon a healthy coordination, mutual respect and constitutional balance between the union and states. So I think to conclude union and state relations, you have like understood that what kind of balance is required. These provisions maintain balance between national unity and state autonomy, making Indian federalism unique in nature. And if you found this lecture helpful, do share, like and subscribe to the channel for more detailed constitutional law structures. And thank you everyone for watching this lecture on union state relations. I hope this topic is now clear to you article wise. See you in the next constitutional law structure. Thank you for watching.